say something to you, ठीक है, I want to say few things. आप सबको पता ही होगा कि क्या चल रहा है भाई, 12 साइंटिस्ट फाउंड डेड और मिसिंग. किसी को कोई इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट अफवाह भी उड़ रही है और कहीं ना कहीं लोग इसको सच भी मान रहे हैं, एंड कुछ लिंक्स भी हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है. सो एज यू कैन सी, आप जानते होंगे, जिनको पता है उन्हें पता है भाई, जिन्हें नहीं पता है मैं बताता हूँ. सो वेलकम टू माई चैनल ऑन कोनाक टॉक्स मनी. यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ मनी, नेचर ऑफ मनी, हाउ टू अर्न मनी, और कैसे सब कुछ पैसे से ही रिलेटेड है, एंड हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, चाहे वो रियलिटी हो, कुछ भी हो, वी टॉक अबाउट इट. सो जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है, एंड मे बी आई शुड नॉट से बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा बहुत डार्क कन्वर्सेशन होने वाली है. पिछले कुछ महीनों में 12 साइंटिस्ट फाउंड डेड और मिसिंग. उनमें से एक साइंटिस्ट जो बहुत वायरल हो रही है, उसका नाम था, अब तो था ही बोलना पड़ेगा, एमी एस्करिच. ये एंटी ग्रेविटी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर थी हंट्सविल में एंड अलाबामा में, एंड शी ऐसे बोलते हैं कि शी किल्ड हर सेल्फ. जब इसकी फैमिली से पूछा गया, इसकी फैमिली का स्टेटमेंट सामने आया एमी एस्करिच की कि भाई व्हाट हैपेंड, तो फैमिली, रिचर्ड एस्करिच जो उसके पापा हैं, सेट कि नहीं, इट वॉज नॉट लाइक कॉन्स्पिरेसी, ये खुद उसने किया है. अब इसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ है, वो हम पता करेंगे इस वीडियो में आगे. आपको एंटी ग्रेविटी जैसा वर्ड आज से पहले सुनने में आया ही नहीं होगा, पर लेट मी टेल यू कि ऐसा एंटी ग्रेविटी जैसा वर्ड टेस्ला के ज़माने से चला हुआ आ रहा है. 4 से 5 बार पहले एंटी ग्रेविटी डिस्कवर या इन्वेंटेड कह लो हो चुकी है. ये बात सबकी सारी बात एमी एस्करिच ने सोशल मीडिया पे डाल दी थी. We discovered anti-gravity and it's a real hassle. We discovered anti-gravity and it's like the worst thing that ever happened to us in our entire lives. It's like a fucking curse. It's horrible. So I hired this new cybersecurity company and it's run by the former CIO of Northrop Grumman. I was referred to him for a reason. And he's like, hey, I've been spending 35 years in counter-espionage, specifically for the Navy, specifically for advanced propulsion. And I was like, okay, I'm going to tell you a series of really crazy ass stories, and can you please reserve judgment until the end? And I told him a bunch of stories about like electronic and physical surveillance and stalking and like weird ass death and sexual threats and shit. And I got to the end and I was like, okay, I'm ready. Tell me I'm crazy. I'm here. I'm ready. I'm insane. Tell me I'm sane. I'm ready for it. Tell me. And this guy was like, I wish I could tell you that you were insane, but you're totally not. He was like, I'm so fucking sorry. He was trying to let me down gently, and he was like, the stories you've told me, I've heard. They do it on purpose. They do like crazy ass shit to you that is unbelievable just so that you feel like you can't tell anyone. Here's the thing about open source. They're not necessarily looking for your data. Your data is whatever, it's compromised already. They're on all of your devices. They have your data. They have the technology already. They know. They have your data. The surveillance is 100% about private, personal intel. Your personal communications, your personal calendar, your personal email, your personal photos, and the only reason to collect that is to use it against you. And intimidation. You have to assume if they want it, they're going to get it. You have no privacy. It's hopeless. I have multiple Bluetooth attacks that I have logs and live packet captures for. It's disturbing. You're an autistic Jewish girl too. That's hilarious, isn't it? It's like the punchline to the joke. Judaism follows the mother line. Amy's great-grandmother was given up in an orphanage in Nazi Germany. The mother I'm like a had secret Jew. I was raised believing I was English, Scotch, Irish, Anglo-Saxon, Mutt. I did 23andMe. I am 18% Ashkenazi Jew. So like my girlfriends that I've known since I was like 8 years old, I'm talking to them and I'm like, we discovered anti-gravity and our lives went to shit and people started sabotaging us and it's a harassment, threat. And I'm talking to my girlfriends that have known me my entire life and they're like, I've known you forever. I grew up like visiting your house and like listening to your dad rant. If anti-gravity were to be discovered, it would be in Huntsville. And if someone in Huntsville discovered anti-gravity, it would be your fucking family. It would be the Eskridges. I believe you. I have no doubts. I don't even have to see it because I know you. ऑलमोस्ट इस साइंटिस्ट ने सब कुछ मतलब यू कैन से एक्सपोज किया एंड उसका ये मानना था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है
तो वो साइलेंस में रह के छुप के अगर मुझे कुछ कर देते हैं लोग, तो मेरे बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो व्हाट इफ जब मेरे अगेंस्ट कोई कुछ करने ही वाला है तो मैं पब्लिक में जाके सब कुछ बता देती हूँ, और फिर जो करेंगे तो एटलीस्ट पता तो होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें एमी एस्करिच ये कह रही है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। अब जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है बूगास्फीयर की एंड द न्यू गॉड की, जाके चेक करो, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई, मोटिवेशन मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में जो गूगल पे नहीं है। सो एमी एस्करिच सेड कि एलियन रेस होती है P52 एंड P47 करके, जो रेस है वो एग्जिस्ट करती है। P52 का मतलब ये है कि आज से 52,000 ईयर्स के बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं, और जो P47 है आज से 47,000 ईयर्स के बाद जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो टाइम ट्रैवल करके विजिट कर रहे हैं अर्थ को, एंड दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि जो गलती हमने करी है, जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, वो तुम लोग मत करो। एंड मतलब आप समझ रहे हो, वो एलियंस नहीं, वो ह्यूमन बींग्स ही हैं। दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्यूचर टू पास्ट, मतलब आज के टाइम पे, टू टेल कि हमारी गलती क्या है। एंड दिस इज समथिंग विच शी हैज सेड कि एलियंस हम ही हैं, एंड बिकॉज ऑफ कुछ कैटास्ट्रॉफी होगी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से कुछ ह्यूमन बींग्स होंगे जो धरती के अंदर चले जाएंगे, जो बंकर्स वगैरह जिन्होंने बिलियनर्स ने बना रखे हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स ने बना रखे हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने बना रखे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मिलियनर्स खूब सारा पैसा कमाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाई वो बंकर बनाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग दैट कॉमन पीपल डजंट नो। तो जो लोग बंकर में गए और बच गए, ठीक है, और जो लोग किसी भी कारणवश धरती के ऊपर रहे और मैजिकली बच गए, एंड आई एम कोटिंग कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एमी एस्करिच बोल कर गई है, एंड शी वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट वर्किंग फॉर नासा, एंटी ग्रेविटी, लाइफ फॉर्म, लाइफ फोर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट नॉट। एंड जो लोग ऊपर बच गए धरती के, जो अंडरग्राउंड बच गए, दे लर्न समथिंग एंड दे लर्न द सर्वाइवल मेथड, और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफी एंड मे बी यू कैन से न्यूक्लियर रेडिएशन। जैसे कि एलियंस, जो परफेक्ट पिक्चर हमारे सामने आई है वो ये थी कि उनका सर बड़ा होता है, नोस्ट्रल छोटी होती है, आईज छोटी होती है, एंड दे डोंट नीड फूड टू सर्वाइव। और ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट भी है ना, जिसमें देयर वाज अ गाय, he lived for many years without eating food on just sunlight. So उस पर भी रिसर्च हुई थी कि बिना खाना खाए ये बंदा इतने सालों तक, 20-30 सालों तक कैसे जिया, एंड सिर्फ सनलाइट लेके, एंड इट वाज क्रेजी। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर आज हम जो बात कर रहे हैं इट्स वेरी क्रेजी। एंड देन एमी एस्करिच सेड कि भाई एंटी ग्रेविटी इज नॉट समथिंग न्यू। ये कॉन्सेप्ट पे यूएफओस चलते हैं, मतलब अर्थ की खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आप सोचो, अगर एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि यूएफओ है, अगर वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर सके अकॉर्डिंग टू द अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल पे जाके अगर वो नॉर्थ पोलराइज्ड हो जाए यूएफओ, तो वो फ्लोट करेगा, राइट। साउथ में जाए तो साउथ पोल कन्वर्ट कर ले अपने मैग्नेटिज्म को, तो वो फ्लोट करेगा, राइट। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, ना फ्लोट, जिसके कॉन्सेप्ट पे आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन्स भी चलती हैं। आप सोच के देखो, फ्री एनर्जी हो गई है तो, और जब फ्री एनर्जी हो गई तो जितने बड़े बड़े ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट नॉट, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो जाएंगे अगर ये एंटी ग्रेविटी कमर्शलाइज हो गई। एंड कमर्शलाइज क्या होगी, मे बी मोस्टली तो फ्री होगी। एंड एमी एस्करिच सेड यू नो व्हाट, कि भाई आज नहीं, आज से 4 बार पहले भी एंटी ग्रेविटी लाने की कोशिश करी गई, बट सबको साइलेंस कर दिया गया, और अब जाके भी यही हुआ है। 12 साइंटिस्ट फाउंड डेड एंड मिसिंग। उसमें से अब तो ये भी खबर आ रही है कि 6 साइंटिस्ट कहीं ना कहीं चाइना के भी हैं, सो 12 + 6। मैं नाम लेता हूं उन 12 साइंटिस्टों के पहले, और हाँ, उनमें से पता है मतलब क्रेजी बात क्या है, उनमें से एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था जो यूएफओस पर काफ़ी रिसर्च करता था, और वो आप लोगों ने भी देखा होगा, एनजीओ पे भी आया है बहुत बार, हिस्ट्री चैनल पे भी आया है। मैं फोटो लगाता हूँ पहले इसकी, आप देखो, आपको याद आ जाएगा। दिस गाय, थोड़ा जूम करता हूँ, डेविड विलकॉक, ये बंदा लेजेंडरी बंदा था। एंड दिस गाय ऑल्सो फाउंड डेड, यू नो व्हाट, और मे बी डिसअपियर्ड। ही यूज्ड टू से अबाउट यूएफओज, एलियंस, माइथोलॉजी रिलेटेड सुमेरियंस, अनुनाकीज,
जिन्होंने अनुनाकी के बारे में नहीं पता, जाओ मेरी वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा द बूगोस्फीयर के बारे में, कि मैंने वहाँ से काफ़ी चीज़ें बताई हैं। दिस गाय इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ ये पब्लिक में डालता था, एंड ही इज़ ऑल्सो मिसिंग नाउ। सो ऐसा क्या है जो कोई तो है इस दुनिया में जो चाहता नहीं है कि एंटी ग्रेविटी, जो बेसिकली यूएफओज यूज़ कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से वो लाइक 65,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, वो फोर्स ह्यूमैनिटी को ना मिले। एंड एमी एस्करिच ऑल्सो सेड कि यू नो व्हाट शी हैज डिस्कवर्ड कि यू कैन ट्रैवल लाइक स्पेस मैटर स्पेस मैटर स्पेस मैटर स्पेस मैटर। एंड व्हाट इज दैट स्पेस एंड मैटर, मतलब जब ट्रांजिशन करोगे व्हाट इज दैट, दैट इज टाइम ट्रैवल। सो एंटी ग्रेविटी इज समवेयर रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल। एंड शी सेड एवरीथिंग ऑन कैमरा, ठीक है। इस कन्वर्सेशन को आगे ले जाने से पहले मैं ना मतलब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, सो दैट आपको पूरा एक बड़ा पिक्चर मिले एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट कि ये बिग पिक्चर है क्या। सो I'll टेक यू टू माई बोर्ड जो मैंने बनाया है, एंड ये कन्वर्सेशन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। एंड हिट दैट सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक जरूर करो भाई, एंड शेयर जिसको ये देखने की जरूरत है, जिसको ये सब चीज़ें पसंद है और जो सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, ह्यूमैनिटी, मनी, माइथोलॉजी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक चीज़ और, हम ये जानेंगे एंड में, जब आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि ये सब पैसे से कैसे रिलेटेड है, वाई दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मनी, राइट। एंड आपके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं और आप बात कर रहे हैं, एक और प्राणी है जो इस मैट्रिक्स से ऑलमोस्ट बाहर ही है, और वो प्राणी ये है। अच्छा ये देखो, एक ये प्राणी है जो मेरी वीडियो और कन्वर्सेशन सुनता है जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ, तो है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी तो एलियन ही है, हम भी तो एलियन ही भाई। चलो बोर्ड पे चलते हैं, फिर आगे कन्वर्सेशन लेके चलेंगे। तो बोर्ड पे चलते हैं, एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द कंप्लीट वन, क्योंकि बहुत कुछ है जो इतनी छोटे से स्पेस में नहीं आ सकता, तो कंसिडर दिस एज अ पार्ट वन। इसके बाद की फॉलोइंग वीडियोस में आई विल मेक अ बिगर बोर्ड एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ठीक है, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अनुनाकीज फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, इनका एक प्लैनेट होता है जिसको कहते हैं निबिरू और टीएम8, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं निबिरू जो है एक उनका प्लैनेट है और टीएम8 भी प्लैनेट है, बट कुछ लोग कहते हैं कि निबिरू टीएम8 का मून था और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। सो जो भी हो, व्हाटएवर, ये जब निबिरू इनका प्लैनेट वॉर्स की वजह से, न्यूक्लियर वॉर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, दे फाउंड आउट कि भाई इनको गोल्ड एंड वाटर चाहिए अपने एनवायरमेंट को सही करने के लिए, वापस से प्लैनेट को रीबिल्ड करने के लिए। अब ये रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे आर टाइप 7 सिविलाइजेशन। कार्दाशिफ स्केल में टाइप 7 सिविलाइजेशन है ये लोग, अनुनाकीज, ठीक है। हम लोग 0.7 पे हैं, बिकॉज वी जस्ट कैन लाइक यूटिलाइज एंड कंज्यूम द एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट, वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द होल प्लैनेट। टाइप 7 सिविलाइजेशन कार्दाशिफ स्केल में क्या होता है, जो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, यूज कर सकता है, जैसे डायसन स्फीयर, ठीक है। अनुनाकीज की जो नेक्स्ट रेस थी वो सुमेरियंस के बाद मेसोपोटामियंस। नाउ ये धरती पे क्यों आए, क्योंकि इन्हें गोल्ड चाहिए था। गोल्ड इनको कहां से मिलता, जो पहले एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ था गोल्ड का, जैसे बताते हैं कि वो अफ्रीका में शुरू हुआ था, एक जगह एडम्स कैलेंडर, ठीक है, वहां से गोल्ड एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ धरती। अब ये पूरा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये पूरा काल चक्र पैसों पे आके खत्म होगा, बिटकॉइन पे आके खत्म होगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, और एंटी ग्रेविटी पे भी हो सकता है। अफ्रीका में इन लोगों ने खुदाई शुरू करी। अब इनकी जो रेस थी, जिनको कहते हैं एनली, एनकिन और अनु, तो ये 3 गॉड्स थे। अनु के बेटे थे एनली और एनकिन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ये भी बोल सकते हैं शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा, ठीक है। नाउ इनमें से जो एक था, जो आपका एनली था, वो एंटी ह्यूमन था, और एनलिन था, ठीक है, एनलिन वाज फॉर ह्यूमंस, मतलब उसको ह्यूमंस पसंद थे। व्हाट दे डिड, दे केम ऑन अर्थ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब इन लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर गोल्ड बहुत छोटी क्वांटिटी में था और बहुत जगह छुपा हुआ था अर्थ पे, ठीक है। सो पहले तो डेमी गॉड्स ने क्या बोला कि भाई चलो हम करते हैं, बट वो थक गए क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर वाला वर्क था, तो दे डिसाइडेड कि भाई हम तो गॉड्स हैं, हम क्यों करें। तो इन्होंने एक रेस बनाई, जैसे हम लोग बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इन्होंने भी एक रेस बनाई, और उस जगह को इन्होंने नाम दिया, उनकी एक लैब थी जिसको एक गार्डन ऑफ ईडन बोलते थे। उस लैब में दे यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स एज अ स्लेव फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ठीक है। मास प्रोडक्शन किया इन्होंने। सो दे, आपने ये कहानियां भी सुनी होंगी, सेक्स विद गॉड्स एंड एलियंस, ठीक है। नाउ 2 रेस पैदा होती है, एक नॉर्मल होती है, ठीक है, जो कि फुल स्लेव्स होते हैं, एक जाइंट्स होते हैं जो कि मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जैसे ज़िगैरथ, बड़े बड़े टावर ऑफ बेबल, है ना, आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर सुनोगे। 2 रेस आती है। अब जो नॉर्मल रेस है ये अभी भी स्लेव है। कैसे? नाउ दीज नॉर्मल पीपल, ओके, वो आज भी अगर आप रिलेट करो तो वो काम करते हैं किसके लिए, उन 13 फैमिलीज के लिए, ठीक है, जो आपने सुना ही होगा, बहुत मैं नाम नहीं लूंगा बट आपको पता है।
ये 13 फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर है वो कहां से आया? मेगा जाइंट से आया, जिसको कहते थे नेफिलिन, जो कि बुक ऑफ इनॉक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एपिक ऑफ गिलगमेश भी है। गिलगमेश अनदर वन ऑफ द किंग ऑफ जाइंट्स, इसकी रेस ने एक अलग कल्चर, अलग गॉड को मानना शुरू किया, बिकॉज दे यूज्ड टू ईट ह्यूमन बीइंग्स, कबाल और सैटर्न, ठीक है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां से शुरू होती है कि इनकी वर्शिप करने वाली ये फैमिलीज हैं, जहां पे हमें दिखता है कि हॉलीवुड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उधर जो वर्शिपिंग है, उधर जो फॉलो होता है, ऑस्कर अवार्ड्स हैं, ठीक है, आपका एप्स्टीन्स आइलैंड है, वो कहीं ना कहीं यहां से इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इस वाले एरिया से। नाउ ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आज भी, ठीक है, आप कोई भी माइथोलॉजी बुक उठा लो, पढ़ लो, हिंदू, ग्रीक, नॉर्स, सबकी कहानी सेम है। क्यों? अर्थ 3600 साल के बाद रीसेट होता है। अर्थ आपने सुनी होगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये अर्थ रीसेट हमेशा 3600 ईयर्स के बाद ही क्यों होता है? जाओ और चेक करो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये आपको 3600 ईयर्स के मल्टीप्लिकेशन में ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो निबिरू प्लैनेट है, जो अनुनाकीज है, वो 3600 साल के बाद अर्थ पे आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल शिफ्ट्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ बन जाता है, जहां पानी है वहां डेजर्ट हो जाता है, जहां डेजर्ट है वहां पानी हो जाता है। ये रीसेट होती है अर्थ, और हम इसे कहते हैं युग का बदलना, ठीक है। ग्रेट फ्लड की कहानी हर जगह है, सेम ही है। नाउ ये जो स्लेव्स हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनको गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए काम किया, आप सोच के देखो भाई एक बात, आज भी पूरी धरती पे जो भी कंट्रीज है, हर कोई किस चीज के पीछे पड़ा है? गोल्ड के पीछे पड़ा है। पर गोल्ड का कोई यूज ही नहीं है, आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, जबकि वुड का यूज है। वुड इज लाइक, यू नो व्हाट, सब चीज में वुड यूज होता है, और पूरे ब्रह्मांड में ना सिर्फ वुड ही नहीं है जो आपको मिलेगा किसी और प्लैनेट पे, सिर्फ धरती पे है। तो वुड इज द रियल करेंसी, बट यहाँ गोल्ड है। तो गोल्ड हमारे लिए तो कोई यूजफुल है ही नहीं यार, हम तो खा भी नहीं सकते, हम तो पी भी नहीं सकते, बट किसके लिए यूजफुल है, सोच के देखो, है ना। देन Hey, have you seen the Konark Talks Money videos? Wow, man, it is absolutely crazy. You should really check them out and make sure to subscribe to the channel. comes your, अब ये जो 13 फैमिलीज हैं, या फिर पूरे बड़े बड़े जो वो लोग हैं, जो लोग लिटरली इस धरती को चला रहे हैं, फाइनेंशियल, हॉस्पिटल, बैंकिंग, क्रिप्टोज, कुछ भी बोल लो, ठीक है, जॉब्स, इनके लिए आज भी ये काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल वाले, ठीक है। नाउ यहां से आपका एक स्ट्रक्चर आता है। ये 13 फैमिलीज आर गोइंग, दीज पीपल आर एक्चुअली कंट्रोलिंग व्हाट? ट्रांसपोर्ट, मूवीज, टेक, बैंक, लैंड, गोल्ड, इन शॉर्ट एनर्जीज। आपने कभी भी एलॉन मस्क को पैसे और करेंसी के बारे में सुनते हुए नहीं देखा होगा, वो हमेशा एनर्जीज की बात करता है। ही सेज बिटकॉइन इज द रियल करेंसी, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड करेंसी है, कंप्यूटिंग बेस्ड है। नाउ यहां से आते हैं इस वाले पोर्शन पे। व्हाट हैपेंस नाउ? बिटकॉइन, ऑयल, रियल अर्थ मैटर, इलेक्ट्रिक, ये सब एनर्जीज है। इस पे जो कंट्रोल करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहा है, ठीक है, वो पूरी धरती पे कंट्रोल करेगा। नाउ वेयर कम्स दिस एंटी ग्रेविटी एंड एलियंस। अगर एंटी ग्रेविटी आई इस धरती पे, एंड प्लीज फॉरगिव मी, मेरे डॉग्स भौंक सकते हैं, एंटी ग्रेविटी अगर एज एन कमर्शलाइज हुई, जिस पे कंट्रोल हुआ, तो ये जितने भी एनर्जी बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स है, ये सब खत्म हो जाएंगे। नाउ दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट आई वांटेड टू से फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जब P52 एंड P47 के बारे में बोला एमी एस्करिज ने, आई वाज लाइक शॉक्ड। डेविड विलकॉक इज आल्सो मिसिंग, एमी एस्करिज इज मिसिंग। वो सारे लोग जो पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का थ्योरी ही बदल सकते थे, दे आर मिसिंग। एंड लेट्स गेट बैक टू आगे बात करते हैं, ठीक है। एंड यू नो व्हाट एमी एस्करिज सेड कि जब वो काम कर रही थी अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, लैपटॉप पे, एंड तब उसका कंप्यूटर कनेक्टेड भी नहीं था इंटरनेट से, और उसके हाथ पे बर्न्स के निशान थे, बिकॉज वो ऐसे बैठी हुई थी और काम कर रही थी, और उसकी विंडो थी वहां पे। तो विंडो जहां से खुलती है, उधर एक्सपोजर था हाथ का, और पूरी बॉडी पीछे थी विंडो के। तो पूरी बॉडी पे कुछ नहीं हुआ, बट हाथ पे ऐसा करके पूरा उसने दिखाया, उसके हाथ रेड थे, लाइक शी वाज बीइंग हिट बाय सम डायरेक्ट एनर्जी वेपन। I found out that I was being physically surveilled by the following method. My ex-boyfriend and I realized that people had been breaking into our apartment while we were gone together in the same vehicle. And so like, I'm in the apartment, I'm about to go to work, and I'm like, why don't you take out the trash and scope out the parking lot and make sure it's okay before I go to work? So he goes out there and he's like, there's this weird fucking Lexus. It's like a silver Lexus. This is a shitty apartment. Like, why is there really nice Lexus in the parking lot? And it has tinted windows that are not street legal. Like just totally dark, totally black tinted windows that are not possibly street legal. And so he comes back in and we're standing in our bedroom window looking at the Lexus and talking about it. And I say out loud, maybe we should walk over there later and take a picture of the license plate. Because the Lexus is across the parking lot from us, but it's backed in, so you can't see the license plate. Within 2 minutes of me saying, hey, we should walk over there later and take a picture of the license plate, we were still standing there at the window looking at it, talking about it. And an Eastern European looking motherfucker with a black beanie, dressed all in black,
in his 50s or 60s walked out of the apartment directly across from ours holding a license plate. And he opened the trunk of the Lexus and he took out some tools and he changed the license plate right in front of our fucking faces. And then he walked back to his apartment and he put the old license plate on the front patio and went inside, left it outside. And it was literally like, come get the license plate. I have more where this came from. Come get the license plate. And then after that, the Lexus started tailing me. And every time I saw the Lexus, it had a different license plate. It would be like Alabama plates, a different state plate. It would be random dealer plates, none of which were local, just like cardboard temporary dealer plates, none of which were any local dealers. Every time I saw it, it was different plates. It would follow me to the gas station to go get beer. I would go get beer at the gas station and that Lexus follows me. And even my ex called an Uber once. He called an Uber. The Lexus pulled out from the spot across the parking lot from our apartment, drove over to our apartment and said, "Hey, I'm your Uber here to pick you up." The license matched in the Uber app, but they didn't have an Uber sticker or a Lyft sticker. You can't drive Uber if you don't have an Uber sticker. He pulled out of his spot. He pulled out of his spot across from our apartment where he lived and drove over there to pick him up and said, "Hey, I'm your Uber here to pick you up." They changed the license plate right in front of our face. Like 60 seconds after I said, "Hey, we should go take a picture of that license plate." And they leave it on the patio, like, "Take it. We have more. Just take it." Like, एंड जिनको नहीं पता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या होता है मैं बताता हूँ इसी बात पे सब्सक्राइब। ये जो अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ा है मुडुरो, ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज हुआ था बिकॉज देयर इज अगेन अ कॉन्स्पिरेसी। भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए तो सब कॉन्स्पिरेसी है कि जब इसको पकड़ने गए थे मुडुरो को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, तो ये सो रहा था। इसके जो वो थे ना सिक्योरिटी गार्ड्स, वो बिना किसी बात के दे जस्ट स्लेप्ट, मतलब गिर गए बेहोश, एंड इसको आराम से गए और लेकर आ गए बिकॉज दे शॉट डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऑन दिस मुडुरो। एंड इसने ये भी पब्लिक कर दिया कि भाई मेरे ऊपर ऐसे अटैक चल रहे हैं एंड कोई है जो मेरे पे 24 घंटे नजर रख रहा है। एंड जब मेरे घर के आगे गाड़ी थी, एमी सेड, तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसका नंबर प्लेट ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जैसे ही उसने ये बात बोली, सामने से बंदा आया एंड उसको फ्लॉन्ट करके कि भाई कर ले यार, क्या हो गया, उसने अपनी नंबर प्लेट ही चेंज कर दी, एज इफ ही वाज लिसनिंग एज वेल। एंड दिस मेड हर शॉक्ड कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब, है ना। एंड दिस इज सो स्केरी, दिस इज सो क्रेजी, एंड दिस इज नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड टू मनी। एक बात बताओ, अगर एंटी ग्रेविटी जो कि फ्री एनर्जी है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, अगर कमर्शलाइज या दुनिया के हाथ लग जाती है, लेट्स से एमी आल्सो सेड कि अगर उनको लग रहा था कि अगर मैं पब्लिक करती हूँ तो कोई यूएस गवर्नमेंट से मेरी तरफ आएगा और बोलेगा कि मत करो, ऐसा ना हो कि तुम चाइना को ये बेच दो, तो हम इसको पेटेंट कर देंगे और हम तुम्हें लाइक विल सपोर्ट यू। बट नोबडी केम देयर। जिन लोगों ने वो देखा है ना भाई, देयर इज अ सीरीज, बड़ी क्रेजी सीरीज है, मैंने लॉकडाउन में देखी थी, द डार्क। सो डार्क में क्या होता है, जिन्होंने देखी उन्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं फ्यूचर में जाता हूं, मतलब हमारी टाइमलाइन कैसी होती है, या तो आगे ही चलेगी, लीनियर चलेगी, बट ब्रह्मांड ये कहता है कि आपकी टाइमलाइंस लीनियर नहीं है, मल्टीपल टाइमलाइंस भी हैं, पीछे भी जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हो तो वक्त धीरे चलता है, लाइक यू ट्रैवल इनटू द स्पेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मेरा यहाँ का धरती का 1 घंटा और लेट्स से मैं मार्स पे गया या कुछ स्पेस पे गया, वहां का 1 घंटा अलग होगा। मतलब अगर मैं 1 घंटा स्पेस में गया और मैं वापस धरती पे आया, तो हो सकता है धरती पे 10 से 20 साल गुजर गए हो, तो वक्त स्लो हो जाता है स्पेस पे, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस पे इंटरस्टेलर भी बनी है। डार्क में क्या होता है, मैं एज इन प्रेजेंट एक पोर्टल से जाता हूँ, जो कि एमी बात कर रही थी कि वी कैन गो थ्रू पोर्टल्स, और मैं अपने फ्यूचर में चले जाता हूँ और मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलता हूँ और उसको ये और मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे मेरी गलतियां बताता है। मैं वापस आता हूँ अपने प्रेजेंट में, जो कि उसके लिए पास्ट है, मेरे लिए प्रेजेंट है, और उसका प्रेजेंट मेरे लिए फ्यूचर है, ठीक है। मैं
मतलब मैं अपने ही फ्यूचर सेल्फ से मिलके आता हूँ और अपने प्रेजेंट में वो गलतियां सुधार लेता हूँ और मेरा फ्यूचर बदल जाता है। सेम बात एमी बोल रही थी अबाउट P52 एंड P47 ह्यूमन रेस, जिसको हम आज एलियन कंसिडर करते हैं कि वो, और CNN पे डोनाल्ड ट्रंप ने, ना जाने कितनों ने अब तो ये बात बोली है कि UFOs एग्जिस्ट करते हैं, प्रूफ्स मिले हैं, लाइव वीडियोस हैं। जिनको देखनी है जाओ मेरी बोगस फेयर वाली वीडियो देखो, एलियंस लाइव प्रूफ करके एक और वीडियो वो देखो 3i एटलस पे। वो विजिट कर रहे हैं अर्थ को एंड दे आर स्कैनिंग अर्थ, मे बी दे आर स्कैनिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि हम वो काम ना करें जिसकी वजह से वो आज जिस सिचुएशन में है और हमने अपना प्लैनेट ही खत्म कर दिया। तो ये बात एमी एस्करिच बोल रही है अपनी वीडियोस में। एंड एक चीज और देखो, जब एंटी ग्रेविटी की बात पब्लिक होने वाली थी और ऐसी UFOs की बात पब्लिक होने वाली थी, हैव यू नोटिस्ड वन थिंग कि तभी ये सारी एप्स्टीन्स फाइल बाहर आई है। ऑल्दो देयर आर मेनी वीडियोस विच सेज, इवन सिम्पसन्स में भी है जो कि प्रेडिक्टिव कॉन्शियसनेस है, कि एप्स्टीन्स फाइल की बातें 1940s 50s से हो रही हैं, बट अभी क्यों बाहर आई है? US ने अभी इराक पे एक ऑपरेशन किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो क्या था पता है, लाइक कहते हैं कि उनको गिलगमेश की, जो कि नेफिलिन मैंने भी बताया, उसकी कब्र मिल गई थी। और उसके लिए और ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि जो इराक पे इन्होंने जो वॉर करा, जो भी करा, इट वाज अबाउट ऑयल एज वेल, एंड बट इट वाज मोर फॉर दैट ग्रेव ऑफ एपिक ऑफ गिलगमेश का जो ग्रेव है वहां पे, जो बॉडी है। सो आई थिंक this is good enough. Maybe you know what is happening right now, and I can go on and on and on. जब ये कवर अप है बहुत बड़ा बिकॉज ऑफ एप्स्टीन्स फाइल, या फिर ये जो लाइक रिसर्चर्स, बिकॉज नाउ यू विल से कि भाई रिसर्चर थे तो नासा के लिए काम कर रहे थे, तो ऐसा क्यों करा उन्होंने उनके साथ? भाई दे वर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, एक कम्युनिटी थी, दे वर नॉट टोल्ड टू वर्क ऑन दैट। सो आई होप दिस blows your mind यार, कि मनी इज द ओनली फैक्टर इन दिस प्लैनेट, जिसको माया नगरी भी बोला जाता है, कि अगर कुछ लोगों का इस धरती पे कंट्रोल है और जो डिसाइड कर रहे हैं कि मनी पावर कैसे यूज होगी, गोल्ड पावर कैसे यूज होगी, एंड देन तुम उनके आगे एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश करते हो जो कि उनके पूरे कंट्रोल को ही खत्म कर देता है, क्योंकि मनी से ऊपर पावर होती है और पावर की वजह से मनी होता है। जब आप पावर को किसी की चैलेंज करोगे, जो कि शायद इन लोगों ने करा है, then you have to face serious consequences because you are not the king and queen of this planet Earth. And अंटार्कटिका को लेके भी बहुत सारे speculations हैं, and this is crazy man. I'll come with the second part. आप लोगों को क्या पता है? Please let me know in comments. What else you know? And let's share the knowledge of it. And this is mind blowing. So keep watching Kunak Talks Money, because everything is related to money, bhai. है ना? Everything is related to money. And hit subscribe and like button. मिलते हैं अगली वीडियो में with another information जो मेरे पास होगी, and I'll try to share. तब तक keep watching Kunak Talks Money and support. And thank you so much guys. मिलते हैं अगली वीडियो में।